मंत्रमुग्ध करने वाली परफॉर्मेंस थी। इनकी मन भावन धुनों ने और ऊर्जा भरी परफॉर्मेंस ने तो इस शाम को और शानदार और यादगार बना दिया। Now I'm honored to take this opportunity to invite our esteemed chief guest, Mr. Shalabh Mathur, to come onto the stage and grace us with a few words of wisdom. Let's give him a big round of applause as he makes his way to the stage, everybody. Most revered Dr. Rafi Manzili, Archbishop, Mr. Indu Vikram Singh, District Magistrate, Aligarh, Dr. Joseph Emmanuel, Director Academic, CBSE, Father Dr. Varghese, Principal, Father Jose Alcara, Managers, and all the other dignitaries present here, students, their teachers, guardians. It's a matter of great pride and pleasure to be part of the program today. The grand scale in which the program has taken place so far is simply mesmerizing. It's one of the best programs I have attended of the school students. I wish all the faculty, all the teachers, all the guardians and students, especially the small kids, the dress was so beautifully designed, and all the students participating in the events. It is such a heartwarming feature of the event so far. I congratulate the band also. The moment I entered the school campus, the kind of band and the band just they had performed was simply so well oiled and drilled program. I congratulate the whole faculty again. I wish and I am so happy and glad to see that the school is taking forward the values of national integration, the values of developing full faculties of human mind in the field of music, sports, art, culture, and everything, drama, and they are incorporating the value which is most integral to, I believe, individual development, that is self-control and self-discipline. I believe these two values are inherent for any individual to develop or excel in any field of his life. I wish all the students that whatever path they aspire to move in their life forward, in whatever field, whether it's sports, whether it's academics, whether it's civil services, whether it's dance, whether it's business, whether it's law, any field, they don't forget these values of self-discipline, self-value, self-control, and strive for their task with utmost dedication and honesty. Again, I wish the school all the best for the future and the students all the best for the future. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Sir, I request you to kindly stay on the stage for a few moments. Let's give a big round of applause to our amazing chief guests for the inspiring speech, everybody. Thank you for sharing your wisdom and making this annual function even more special. We truly appreciate your presence and contribution. Now, I request our principal along with the Prime Minister of our school to honor our chief guest with a memento. Thank you, sir. Thank you, Father. The new generation kids are a fascinating bunch. They are growing up in a world filled with advanced technology and have an innate ability to adapt to the ever-changing digital landscape. Smartphone is definitely smarter than us to keep us addicted to it. And in today's scenario, if you want someone to pay attention to you, turn into a smartphone. So get ready to witness a power-packed performance by talented young dancers of classes LKG to 2nd. They'll portray the addiction of mobile phones, reminding us to find a balance between technology and real-life connections. कुछ साल पहले की बात है जब
हम इंसानों को भी स्मार्ट माना जाता था, क्योंकि हम सब मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे, एक साथ हंसते खेलते नाचते गाते और खुशियां मनाते थे, जिंदगी से प्यार करते थे। उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me ये सारे कितने खुश हैं, पर दुख इस बात का है कि ये खुशियां अब नहीं रही, क्योंकि हमारी जिंदगी में एक नया दोस्त आ गया है। ऐसा लग रहा है कि मोबाइल मिलने के बाद ही जीना आ गया है। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया खुदा। ये सब खाना खाने से पहले फोटो से ही पेट भर लेंगे। इनको है सोशल मीडिया की बीमारी। ओह गॉड, लाइफ विदाउट मोबाइल, ओह नो नो नो। वाकई हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। अगर हमने अपने बच्चों को ये मोबाइल नहीं दिया होता तो आज ये भी हमारी तरह अपने बचपन के यादगार लम्हों को याद कर पाते। आज भी जब वो मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। अब समय आ गया है कि हमें मोबाइल से भी ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। मैं जानती हूँ कि मोबाइल के बिना अब रहना नामुमकिन है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना। स्पीकर वालों का हम मोदी है मेरा नाम, ममता है मेरे साथ में, ममता है मेरी जान। जिंदगी में प्रॉब्लम कितनी भी हो, लाइफ फिर भी दादा भैया है। सब बढ़िया है, 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 सब बढ़िया
there are shortcuts to happiness, and dancing is one of them. Thank you all for your graceful, elegant, and rhythmic moves. Lines, rhythm, and sound to form a functional melodic line. Plato once said, music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and charm, and gaiety to life, to everything. We welcome you all to a musical journey that spans the spectrum of emotion and experiences. Our first song will make us enchanted by a timeless celebration of the world's wonder. From the hues of the rainbow to the beauty of human connection, our second performance is a soulful rendition of the song titled Alone, a timeless classic that resonates with emotion and nostalgia. It will take us back to the beautiful days of youth with vivid tales of school corridors and search for connection. Now let us invite our talented school choir to the stage for an unforgettable evening of music. For me and you.
give them a huge round of applause. Ladies and gentlemen, welcome to a mesmerizing spectacle of grace and elegance. Tonight, we present Luminous Wings Nova Zia, a breathtaking performance that transcends the boundaries of movements and artistry. Brace yourselves for a grand presentation where the stage comes alive with an enchanting dance of light and the silent flight of performers. Get ready to be captivated by a symphony of movements and illuminations that will leave you in awe. Let the magic unfold. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. But I don't need no money as long as I
and beauty that unfolded on this stage. Please put your hands together for these amazing performers. As we ride this wave of enthusiasm, it's my absolute honor to invite a distinguished individual, our esteemed guest of honor, Dr. Joseph Emmanuel, to please come on stage and share a few words with us. His presence has added a touch of brilliance to our event, and we cannot wait to hear his insights and inspirations. Ladies and gentlemen, get ready to be mesmerized as we embark on a visual journey like no other. Tonight, our skies will transform into a canvas of vibrant colors and dynamic patterns, all brought to life through the magic of laser light. Now brace yourself for an unforgettable experience as we dive into a symphony of light and sound. Without any further ado, let the laser light begin! सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसना ये सौ दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे
great honor to invite our esteemed guest of honor onto the stage, the District Magistrate of Aligarh, Mr. Indra Vikram Singh IAS, a man of profound wisdom and vision. Mr. Singh has been instrumental in steering our district towards progress and prosperity. Sir, your commitment to public services and your relentless efforts in making Aligarh a better place has inspired us all. We are privileged to have you here tonight as our guest of honor. We eagerly look forward to the words of wisdom you are about to share with us. Ladies and gentlemen, let's give a resounding welcome to Mr. Indra Vikram Singh IAS as he addresses us. सेंट फडलेस स्कूल के आज के एनुअल फंक्शन में आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ मौजूद डॉक्टर रफ़ी मंजली आर्च बिशप, हमारे साथ इस एकेडमिक सीबीएसई बोर्ड के डायरेक्टर जोसेफ इमैनुअल साहब, इस विद्यालय के हमारे प्राचार्य डॉक्टर रॉबर्ट वर्गीस साहब और फादर अकारा जो आगरा से आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे प्रधानाचार्यगण, मैं अपने सामने OLF की प्रिंसिपल साहिबा को भी देख रहा हूँ, उन सिस्टर के लिए, और यहाँ पर मौजूद सभी जितने हमारे टीचर्स हैं उन सबको बहुत नमस्कार। मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहा हूं, लेकिन बड़े संकट का समय भी है क्योंकि फादर ने कहा कि सर 5 मिनट में ही ख़त्म कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ा संकट है, तो मैं हमारे विवेक बंसल जी हमारे शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित शहरी हैं और हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, उनको मैं बैठा कर आया हूं कि आप उंगली ऊपर कर दीजिएगा जब 5 मिनट होने लगे। ये हमारे स्पीड गवर्नर का काम करेंगे, मेरी स्पीड को रोकेंगे। ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बात करने से बच्चे बोर होते हैं, हालांकि बच्चे अपने कार्यक्रमों में बिजी हैं। 3 लोग यहाँ पर हैं और 3 लोगों से मुझे बात करनी है। बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, और इन दोनों के बीच की कड़ी हमारे अभिभावक, हमारे पेरेंट्स, मदर फादर। फादर जब बच्चों को लेकर मेरे पास मुझे इनवाइट करने के लिए आए थे तो उसमें से 2 बच्चियां थी और 1 बच्चा था। साइंस के स्टूडेंट थे। मैंने थोड़ा बहुत उनसे उनके करिकुलम के बारे में जाना, समझा। बहुत अच्छे से ये लोग उनको पढ़ा रहे हैं क्योंकि विषय की जानकारी बहुत ज़बरदस्त थी। हम तो कम पढ़े लिखे हैं, साइंस की बैकग्राउंड से थोड़ा सा दूर रहे हैं, फिर भी मैंने उनको कोशिश की कि देखूं कि वो अपने इस नॉलेज को जो किताबों के माध्यम से और टीचर्स के माध्यम से उनको मिल रहा है, उसको व्यवहारिक जीवन में उतारने में उनकी रुचि, उनकी अभिरुचि और उनकी प्रवृत्ति कैसी है। स्वाभाविक रूप से बच्चे हैं, घबराते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाने पर उनको और लगा होगा, लेकिन ये सभी के साथ है, उनके साथ नहीं, सभी के साथ है। हम साइंस पढ़ते हैं लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं अपना पाते हैं। अगर साइंस के साथ हम साइंटिफिक टेम्परामेंट ले आएँ और आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने के साथ भी साइंटिफिक टेम्परामेंट ले आएँ तो बाकी चीज़ें अपने आप बहुत सहज हो जाती हैं। साइंस जिंदगी को सुकून देने के लिए है, आरामदायक बनाने के लिए है, लेकिन अंत में जिंदगी महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा ह्यूमन एस्पेक्ट है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने कितनी उच्च शिक्षा हासिल की है, महत्वपूर्ण ये है कि वो उच्च शिक्षा हासिल करके हम बने क्या हैं। अगर पूरी बाइबिल पढ़ने के बाद भी सलीब में लटके हुए ईसा मसीह के बराबर का दर्द मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ अपने पड़ोसी के लिए, अपनी सोसाइटी के अन्य तबकों के लिए, तो फिर बाइबिल का पढ़ना बेकार हो गया। पूरा रामचरितमानस पढ़ने के बाद भी अगर मेरे भाई के साथ संबंध अच्छा नहीं है, मैं अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ से,
और अपनी सोसाइटी से वो रिश्ता कायम नहीं कर पा रहा हूँ जो भगवान राम ने किया था, तो रामचरितमानस या रामायण पढ़ना भी बेकार हो जाता है। अगर मैं एक सच्चा मुसलमान होने के नाते कुरान पाक पे मेरा दखल है, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मेरे लिए जो 5 चीज़ें फ़र्ज हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तौहीद, उन पर मैं कायम हूँ, मेरा ईमान मुसलसल है, लेकिन मैं इसको केवल किताबी तौर पर अपनाता हूँ और वास्तव में साना बसाना जब मैं नमाज अदा कर रहा होता हूँ उस समय भी मेरे मन में यह भाव रहता है कि मेरे बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति मुझसे कमतर है, तो फिर ऐसा मुसलमान होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो चाहे रिलीजन हो, चाहे मानविकी का कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, वो अंततः होता इसलिए कि हमको बेहतर इंसान बना सके। तो साइंस की उपलब्धियों को गर्व करने के लिए कोने पे मत रखिए, उसको ज़िंदगी में उतारने के लिए आप अपने साथ लाइए, ये बेहतर होगा। और जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें इस प्रकार की कोशिश हो भी रही है। सीबीएसई के डायरेक्टर साहब यहाँ पर हैं। अब तो बच्चों को उनके रिजल्ट्स के साथ जो उनकी रैंक देते थे, ग्रेड देते थे, और इसके कारण बाकी बच्चों के अंदर एहसास कमतरी हो जाता था। उनके अंदर हीन भावना आती थी कि ये आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। उसको भी सरकार ने कम करने की कोशिश की है और ये कोशिश हमको अपने स्कूलों में भी करनी चाहिए। तो मुझे इन बच्चों से यही कहना है, नंबर के पीछे मत भागो, आ गए बहुत अच्छा, नहीं आए और भी अच्छा। जिसके नंबर खराब आएंगे वो ज़िंदगी में मेरी तरह ज़रूर कुछ न कुछ शोहरत हासिल करेगा, कहीं न कहीं अच्छी जगह पर जाएगा। और मुझसे भी खराब आए तो विवेक बंसल जी की तरह समाज की सेवा करेगा। उससे भी खराब आए तो फेडरलिस्ट स्कूल के फादर जैसे सेवा कर रहे हैं वैसे आप भी कोई एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करोगे। और ख़राब हो गया तो आप किसी चर्च के फादर बनेंगे। बहुत ख़राब हो गया तो सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्टर बन जाएंगे। और ख़राब हो गया तो और अच्छी जगह जाएंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिपोर्ट कार्ड में आपके मार्क्स केवल इंडिकेटिव हैं, उनका इसके अलावा कोई मतलब नहीं है, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन तालियां बजाने से बात नहीं बनेगी। इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दीजिए। जब स्कूल जाएं तो बच्चों के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये इतने सारे बच्चे जो यहाँ परफॉर्मेंस दे रहे थे, फादर बता रहे थे लगभग 1500 बच्चों ने यहाँ परफॉर्मेंस दी है। इनके खिले हुए चेहरे जब मैथ्स के सवाल हल कर रहे होते हैं कहाँ मुरझा जाते हैं, जब केमिस्ट्री के फार्मूला रट रहे होते हैं तब कहाँ चला जाता है इनका ये खिलंदड़पन, ये इनका उत्साह। वो इसलिए क्योंकि वो बोझ की तरह हमारे ऊपर आयत होता है। बोझ की तरह आयत नहीं होना चाहिए, बोझ की तरह उतरना नहीं कोई चीज़ चाहिए मेरे दिमाग में। और वो तब होगा जब आप पढ़ाते समय इस बात को ध्यान में रख सको कि बच्चे की मानसिकता क्या है और उसके अनुसार हमें उसे पढ़ाना कैसे, ताकि सहज भाव से वो हमारी चीज़ों को स्वीकार कर सके। तो देखिए मैं धीरे से आ गया टीचर्स पे। बच्चों को तो जो करना है वो कर रहे हैं, अबोध हैं, यहाँ तक आए हैं, सीखेंगे। सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप अपनी वो जिम्मेदारी निभाते समय इस बात का ख्याल रखो कि उनकी उम्र क्या है, उनका तजुर्बा क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं और वो कितनी तेजी से चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपके ऊपर चैलेंज है, ये आपका चैलेंज आपको लेना ही पड़ेगा। और इस चैलेंज का पैमाना आपके मार्क्स नहीं हो सकते, आपका मार्कशीट नहीं हो सकती। बच्चे में क्या सबसे खूबसूरत है ये टीचर को पहचानना ही होगा। और बाकी सब चीज़ें सामान्य रूप से विकसित हो जाएं, ये आपको उसको सिखानी ही होगी। अगर बच्चे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है तो आपको केमिस्ट्री को कविता की भाषा में समझाना ही होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रोमांस को आपको कविता की भाषा में बताना होगा, तब बच्चा एटम के स्वरूप को समझ पाएगा। ये चैलेंज आपके ऊपर है। इस चैलेंज को आप भली बात निभा रहे हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेकिन अगर आप पॉजिटिव तरीके से इसको ले लेंगे तो और बहुत सारे खूबसूरत फूल आपके इस बगीचे से निकलेंगे। आपके ऊपर कई जनरेशंस का बोझ है। सबसे महान जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि हर साल आप एक क्लास में नए बच्चे को डील करते हो।
40 बच्चे आपकी क्लास में होंगे तो अगली बार नए 40, उसके बाद नए 40, उसके बाद नए 40, और जब तक आप टीचर रहोगे तब तक पता नहीं कितने बच्चे आपके नीचे से निकल जाएंगे। और इन बच्चों के स्मृति में केवल आप और केवल आप होंगे। आज मैं इस जगह पर आने के बावजूद अपने प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक मास्टर पंचाराम कभी नहीं भूल पाया। पता नहीं कितने वाइस चांसलर्स, कितने इंस्टीट्यूशंस, कितने प्रोफेसर्स, कितने लेक्चरर्स, कितने रीडर्स हमको पढ़ा कर चले गए, लेकिन मास्टर पंचाराम हमारी स्मृतियों में अभी भी उसी प्रकार से अछूते हैं, वैसे ही बिल्कुल चिरस्थायी भाव से बसे हुए हैं। आपको मास्टर पंचाराम बनना होगा। आज विधायक जी उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मुझे घूर रहे हों। इनको मैं जिम्मेदारी दे के आया था। और तो अंतिम रूप से मैं बात कर लूँ अभिभावकों से, मम्मी पापा लोगों से। पापा लोगों से तो मुझे बहुत शिकायत है, और ये शिकायत जब मैं पिछले दिनों अपने बच्चों के स्कूल के एनुअल फंक्शन में था, सिस्टर यहाँ बैठी हैं, तो वहाँ भी मैंने जाहिर की थी। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ अपने बच्चों पर कतई मत ला दें। वो बिल्कुल डिफरेंट क्रिएचर हैं, बिल्कुल भिन्न जीव हैं, आप नहीं हैं। आप उनको खुद मत बनाने की कोशिश करिए, या जो आपके अधूरे सपने हैं उनको अपने बच्चों के माध्यम से जीने की कोशिश मत करिए। आपकी लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नहीं समझते। वो लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने की। जरा ईमानदारी से सोचना, आप अपनी व्यस्त जिंदगी में कितना वास्तव में बच्चों के साथ समय गुजारते हो। अपना व्यवसाय, अपनी वृत्ति, अपनी नौकरी, अपना पेशा, उसमें से जो समय बचता है उसमें बच्चे को क्या देते हो, और बच्चे को देते हो तो उससे क्या बात करते हो। बच्चे के सक्सेस को तो आप सेलिब्रेट करते हो, बच्चे के फेलियर को भी कभी सेलिब्रेट करिए ना। बच्चा खराब नंबर पाए, डांट खा के आए, तो भी जाके जरा उसको पिज्जा बर्गर खिलाइए, कहीं जाइए ले जाइए उसको बाहर, पिज्जा बर्गर मत खिलाइएगा, फादर नाराज हो जाएंगे, सिस्टर नाराज हो जाएंगी। फास्ट फूड से थोड़ा परहेज करना चाहिए, लेकिन उसको एंजॉय कराने के लिए कहीं लेकर जाइए ना। आप देखेंगे कि उसमें कितना 360 डिग्री का चेंज आता है। फेलियर को सेलिब्रेट करना ही सक्सेस की निशानी है। ऐसा कैसे हो सकता है जीवन में कोई आदमी असफल ही ना हो? हम आप सब असफल हैं, और हम आप सब उसी असफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए सफल हुए हैं। तो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारेंगे तो ही आप बेहतर अभिभावक बन पाएंगे। माताओं से भी मेरा थोड़ा सा खिलाफत तो रहती है, क्योंकि आप बच्चों को पालने के चक्कर में भूल जाते हैं कि उनको कैसे संस्कारित करना है। अभी फादर जो आगरा से आए हुए हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, ये मोबाइल फोन के दुष्प्रयोग को लेकर बच्चों ने इतनी अच्छी एक प्रस्तुति दी थी। हमारे आपके घर के कोई बच्चे इस बीमारी से बचे हुए हैं क्या? कोई नहीं। किसने लगाई ये बीमारी? हमने और आपने। क्यों लगाई? क्योंकि मेरा जो टाइम है, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं घर में कोई काम कर रहा हूँ, माताजी सब्जी काट रही हैं, खाना पका रही हैं, कुछ और डिस्कस कर रही हैं, फोन पे गप मार रही हैं, टीवी देख रही हैं, सीरियल देख रही हैं, सास भी कभी बहुएं देख रही हैं, तो उनको बच्चा डिस्टर्ब ना करे इसलिए लो बेटा तुम इसको देखो 10 मिनट 15 मिनट, और फिर वो 10-15 मिनट में क्या देख रहा है, कौन सा कंटेंट उसके पास है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि केवल स्कूल के भरोसे मत रहिए। वो तो कर रहे हैं जो उनको करना है, जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपकी ही जिम्मेदारी है, तो उसको करने की जिम्मेदारी आपको बखूबी निभानी है। अब एक बात और कह दूं, हालांकि कहने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा काम करती हैं, और हम और आप जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी कम निभाते हैं। तो अच्छे गृहस्थी को निभाने के लिए ज़रूरी बात यह भी है कि आप उनके साथ भी क्वालिटी टाइम दें। जब आपकी वाइफ किचन में काम कर रही हों तो उनके साथ खड़े रहिए, थोड़ा सा आप भी सब्जी कटवा दीजिए, कभी कभी आप भी चाय बनाकर उनको पिला दीजिए, और जिस समय वो खाना सर्व कर रही हो आपको, आप कहिए आप भी अपनी थाली लगा के आओ, हम साथ में खाना खा लेंगे। वो थाली उठाकर सिंक में आप उनके साथ रखिए, कभी कभी बर्तन भी उनके साथ धुला लीजिए। बच्चे का जब नाश्ता वो तैयार कर रही हो तो बच्चे को आप तैयार कर दीजिए। स्कूल छोड़ने कभी माँ जाती हो तो आप भी चले जाइए। आपको लगता नहीं है कि आपके साथ एक जादू रहता है? जादू। सुबह जब आप
अपने बिस्तर को सबसे खराब दशा में छोड़कर जाते हो, पूरे घर को अस्त व्यस्त करके जाते हो, सलवटों से भरे हुए बिस्तर को जब आप छोड़ के अपने ऑफिस या अपने वर्क प्लेस पे जाते हो और शाम को देखते हो कि जादू से वो इतना खूबसूरत नई चादर के साथ बढ़िया सुव्यवस्थित हो गया, आपका अस्त व्यस्त अलमीरा ठीक हो गया, आपका वार्डरोब ठीक हो गया, आपकी किताबें सिस्टमेटिक हो गई, बच्चों का कमरा अच्छा हो गया, इतनी बड़ी जादूगरनी के साथ रहकर भी आप उसके जादू को एडमायर नहीं करते, उसकी तारीफ नहीं करते, तो थोड़ा उसकी तारीफ करेंगे तो आपकी निजी जिंदगी अच्छी रहेगी। और एक और बात नए बच्चों के लिए, जो नए युवा हैं, कभी कभी चांद को जो बहुत इसको अपना घमंड है ना अपनी खूबसूरती पे, इसको भी कभी कभी आप इसके साथ बैठकर, अपनी पत्नी के साथ बैठकर इसको ईर्ष्या करने दीजिए अपने रिश्ते पर, वो परिस्थिति भी पैदा करिए। आप देखोगे ये सारी चीजें धीरे धीरे घोलकर आपके बच्चों तक पहुंचेगी, उनकी वर्तमान और उसकी आगामी जिंदगी बहुत बेहतर होगी। एक बार मैं पुनः सभी पार्टिसिपेंट्स बच्चों को, उनके अभिभावकों को और स्कूल के पूरे स्टाफ को, विशेष रूप से टीचर्स को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि इतना ग्रैंड पैमाने पर इतना खूबसूरत कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और मुझे बताया प्रिंसिपल साहब ने कि लगभग हर क्लास का कोई ना कोई बच्चा इस पे जरूर पार्टिसिपेट किया। ये बच्चियां जो यहाँ पर अभी परिचय दे रही थी, ये भविष्य की नेता हैं, यही इंटरेक्ट करेंगी पब्लिक से और इनको, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सबसे खूबसूरत तरीके से यहाँ निकल कर आ रहा है। ये बच्चे जो यहाँ खड़े होकर परफॉर्मेंस दे रहे थे, ये भविष्य में जब जाएंगे तो इनके मन में कोई दुविधा नहीं होगी, कोई हिचक नहीं होगी। आप इनके जो पेरेंट्स हैं यहाँ खड़ा कर दिया जाए, आपकी टांगें कांपने लगेंगी यहाँ पर सिर देखकर सब लोगों के। 2 मिनट के लिए आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, तो अप्रिशिएट करिए उनकी इस प्रतिभा को, और जहाँ मौका लगे वहाँ बच्चा अच्छा करे या खराब करे, लेकिन वो करे, वो करके कुछ सीखे, इस दिशा में आप कोशिश करते रहिए। स्कूल से शिकायतें कम करिए, अपने आप से अपनी शिकायत ज्यादा करिए। पत्नी को पति से नहीं करनी चाहिए, पति को पत्नी से नहीं करना चाहिए। बच्चे दोनों के संयुक्त हैं, आप दोनों की ही द्वारा पैदा किए हुए हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू। Sir, I request you to please stay on the stage for a few minutes. Now I request our Honorable Principal of our school, Reverend Father Robert Verghese, along with the Prime Minister and Deputy Prime Minister to honor him with a memento. Sir, your words have truly enriched our gathering, and we appreciate the wisdom and perspective you have shared with us tonight.